A shift in wind direction has resulted in a slight improvement in the national capital's air quality, providing a ray of hope for Delhiites. While the air quality was 306 on Monday, 220 yesterday, we're witnessing a slight improvement today. Recording of over AQI has been reported of 190 today, early morning, thereby making it to the moderate category. In an attempt to reduce air pollution in Delhi NCR, the Delhi Metro Rail Corporation has announced that it will be running 40 additional train trips on weekdays across its network effective immediately. Through this move, DMRC is planning to intensify the use of public transport amongst passengers. Joining us live is Arzu Seth from Anand Vihar in Delhi. Arzu, Anand Vihar tends to be one of the most polluted spots in the Delhi region. What is the situation there currently today, Arzu? And are you witnessing a reduction in traffic now that obviously there is a stress from the government for people, for commuters to use public transport? Well, absolutely, Uday. A little bit relief for the people today as the AQI has now, reached to 190. I would like to show you on my phone. You could see, current overall Delhi AQI is 190, which comes in the moderate category. The PM is 2.5. So 190 means close to poor category. So there is not much relief for the people. But yes, as compared when we have seen, on Monday, the AQI has reached above 300, which comes under the poor and very poor category. Right now, I am at the Anand Vihar. The government has, identified the hot spot where the AQI is the highest, where the pollution is highest, and this is one of the reason where we see the AQI is always above 300 or 350. We are showing you the visuals. You could see, the wet road can be clearly seen. Right now, before few minutes, the water has been sprinkled on this road as the GRAP second stage has been implemented in the national capital, under which there are various measures that are being taken by the government to combat with the pollution, and water sprinkling is one of them. The water is being sprinkled on the road to settle the dust particle. In fact, if I would like to show you the traffic here, not much improvement could be really seen on the ground, because you could see, there is a bus stand here at the Anand Vihar. Opposite side, there is a railway station of Anand Vihar. So there is a lot of public in this region. This is one of the most polluted and populated region of the national capital. So you could see, the electronic buses. You could see, in fact, the government has said that they will increase the electronic buses in the national capital. In fact, DMRC will be implementing from today that they will induct more 40 trains will be running today. Additional 40 trains will be running from today to intensify the use of public transport and ask the people to shift from the private to public transport. So these all our attempts are being made to fight from the pollution in the national capital. But every year, Uday, we see the same condition. So this remains to be seen how this time the government is going to deal with the pollution. Yes. Anil Chaudhary is joining us live from Ghaziabad as well. Anil, has there been an improvement in AQI in Ghaziabad today? तो आया है, जैसे कि पहले 400 के पास पहुंच गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, पर फिलहाल 300 के पार है। 304 अभी का दर्ज किया गया है, जो दिल्ली से सटा हुआ लोनी का क्षेत्र है। स्पेशली मैं कह रहा हूं, लोनी का जो क्षेत्र है बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, और वहां पर 310 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब स्थिति में कहा जाता है, रेड जोन में कहा जाएगा उसको। जो ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो 250 के आसपास है पूरे गाजियाबाद का। फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, पर अभी इतनी राहत नहीं है, क्योंकि जैसे ही 400 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा था तो ग्रैप 2 लागू किया गया। उसके बाद तमाम जो पाबंदियां हैं गाजियाबाद में भी वो दिखाई देने लगी। जो सड़कों पर लगातार नगर निगम द्वारा छिड़काव किया जाने लगा, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क जो जरूर पड़ा है। पर फिलहाल अपने दर्शकों को मैं फिर भी दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें गाजियाबाद में दिखाई देंगी। देख सकते हैं आप, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद के NH9 के पास की हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं
वो धुंधली सी दिखाई देंगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये स्मोक की चादर है, ये वो धुएं की चादर है जिससे ये बिल्डिंग्स जो इमारतें हैं वो ढकी हुई सी दिखाई दे रही हैं। वहीं सड़क की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। NH9 है ये, और आप देख सकते हैं दूर तक यदि नजर जाएगी तो कहीं ना कहीं हल्की सी धुंध सी दिखाई देगी। ये धुंध सुबह के टाइम ज्यादा होती है, पर जैसे ही धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं हल्की हल्की धुंध कम हो जाती है। पर फिलहाल जिस तरीके से दमघोंटू हवा लोगों को परेशान कर रही है गाजियाबाद में, वाकई ही एक्शन की जरूरत है। जो तमाम प्रशासन है, शासन है, या संबंधित नगर निगम है या पोल्यूशन बोर्ड है, सबको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो ग्रैब के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जमीनी स्तर पर अधिकारियों को पहुंचने की जरूरत है, जमीन पर जाकर काम करें, लोगों को समझाएं, लोगों को अवेयर भी करें कि घर से निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें। इंडिया न्यूज एक्ट तो लगातार जो है अपने दर्शकों को समझा ही रहा है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें, क्योंकि आसपास की जो आबो हवा है बेहद खराब स्थिति में है। यही वजह है, लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लोगों को बता भी रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स जैसा एडवाइस कर रहे हैं, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, मास्क पहने। और जो उनके पास मरीज आ रहे हैं, ज्यादातर मरीज वो हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उनका दम घुट रहा है, इस तरीके की चीजें जो है जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर्स के पास लेके अपनी परेशानी को पहुंच रहे हैं। और साथ ही आंख में जलन होने की जो कॉमन ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, ज्यादातर बच्चों को ये दिक्कतें आ रही हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, पोल्यूशन के बढ़ते ही आसपास के जो दिल्ली NCR से सटे हुए जितने भी बड़े शहर हैं उन पर खतरा मंडराने लगता है। तो जरूरी है तो ग्रैब 2 जिस तरीके से लागू किया है उस पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाए और जमीनी स्तर पर अधिकारियों को होना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक ये सख्त से सख्त एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जो ग्रैब के नियम का पालन नहीं करते, जो लगातार पोल्यूशन फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन की जरूरत है। Mahindra Mahi is also joining us live now from Noida. Let's go straight across to him. Mahindra, has Noida AQI also improved today? Obviously, this is a result of a change in weather. Also, Mahindra, any steps that the local administration has taken to tackle the deterioration that we've seen in air quality? बिल्कुल देखिए Mahindra? Okay, I think we're having trouble there with Mahindra's connection. Rajat Kumar is joining us live from Greater Noida as well. Rajat, what is the situation in Greater Noida today? Is the latest improvement in air quality due to weather factors, due to wind change? देखिए बिल्कुल उदय, जब मौसम का परिवर्तन होता है तो NCR की जो हवा है वह जहरीली हो जाती है। हालांकि कल और परसों के मुकाबले आज AQI लेवल में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जब धुंध का सवाल होता है, प्रदूषण की सवाल होता है, तो आज भी धुंध है वो सड़कों पर नजर आ रही है। दोपहर के लगभग कह सकते हैं कि 10:30 का समय है वो होने वाला है, लेकिन अभी भी सड़कों पर धुंध है वो नजर आ रही है। जब हम लोगों से बातचीत की, लोगों का मानना है कि हमें आंखों में जलन हो रही है, तो अब हमें दोबारा फिर से मास्क पहनने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि NCR एक ऐसा क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं। लोग सुबह सुबह वॉकिंग पर जाते हैं, टहलने को जाते हैं, तो वहां पर उन लोगों का कहना है कि आंखों में जलन होती है, हमारा दम घुटता है। NCR की स्थिति है वो इस साल कोई नया नहीं है, हर साल की तरह स्थिति है वो NCR की त्योहार से पहले या कह सकते दिवाली से पहले ऐसी देखने को मिलती है। अभी कि लोकल प्रशासन की बात सुविधाओं तो किए हैं और ऑर्डर भी जारी किए हैं कि फैक्ट्री एरिया हो गई, तो तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर जनरेटरों का उपयोग किया जाता है उनको बंद किया जाए। अगर ये आदेश पहले अगर आदेश जारी किया गया होता तो आज
जो एनसीआर की नोएडा ग्रेटर नोएडा की स्थिति है इतनी भयानक हो चुकी है कि सुबह निकलते ही सड़कों पर धुंध नजर आता है, ऐसा लगता है कोहरा है। लेकिन जब लोगों से बातचीत, लोगों का कहना है कोहरा नहीं है, ये धुंध है, ये प्रदूषण है, जो कि लोगों के लिए बहुत घातक है। जो ओवर एज के हो चुके या कह सकते जिनकी एज 60+ है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस धुंध से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सांस के मरीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही निकले, क्योंकि एनसीआर की स्थिति है वो भयानक हो चुकी है। अगर दिवाली के बाद जब स्थिति होगी वो इससे और भयानक हो सकती है। लेकिन लोकल प्रशासन हालांकि कुछ जगहों पर, क्षेत्रों में, नोएडा ग्रेटर नोएडा में छिड़काव जरूर करता है सड़कों पर, लेकिन उस छिड़काव से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर जाकर जहां जहां जनरेटरों का उपयोग होता है वहां पर अगर प्रशासन जाए और लोगों से समझाए कि आप जनरेटर का उपयोग ना करें, कुछ मानक होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में या जो जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, तो उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं समय आ चुका है कि पिछली वर्ष की तरह पाबंदी लगाई जाए। अगर पाबंदी नहीं लगाती निश्चित तौर पर आने वाले समय में नोएडा ग्रेटर नोएडा की स्थिति होगी तो देखने लायक है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जब शुरुआत में ही इतना भयानक हो चुका है, तो जब त्योहार के बाद स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं लोग हैं वो जहरीली सांस लेंगे। एनसीआर की जो क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा, जो कि हाईटेक क्षेत्र कहा जाता है, वहां से अगर आज की बात की जाए तो लगभग 200 के आसपास है। कल के मुकाबले आज जरूर एक्वाई में गिरावट दर्ज की, लेकिन जो धुंध है वो अभी भी बढ़ी हुई है। लोगों से बातचीत से लोगों को कहना है कि अचानक से जब शुरुआत में ही जब ग्रेटर नोएडा की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, तो आने वाले समय में तमाम मौसम चेंज होगा, उस समय स्थिति क्या होगी नोएडा ग्रेटर नोएडा की। जी रजत, बने रहिए आप हमारे संग। लेट मी अटेम्प्ट टू गो बैक टू महेंद्र एट दिस पॉइंट। Mahendra, if you can hear me now, I was trying to ask you earlier about any steps that the local administration has taken to tackle the situation of air quality. बिल्कुल, देखिए, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो इसमें नोएडा प्राधिकरण है और वो तमाम ऐसे एक्शन ले रहा है और लोगों को हिदायत भी बता रहा है किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अभी नोएडा की सड़कों पे जो वाटर टैंकर होते हैं उससे छिड़काव किया जा रहा है। तमाम ऐसे जो रोड है जहां ज्यादा गाड़ियां चलती हैं या जहां ज्यादा लोगों का चलना होता है वहां पे साफ सफाई का ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खासकर अगर अट्टा या तमाम ऐसी मार्केट है जहां रोज लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी गाड़ी लेके पार्किंग करते हैं और पैदल जाते हैं मोटरसाइकिल से, वहां विशेषकर जो टैंकर है वो उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। वहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पेड़ों के ऊपर जो धूल जमे रहते हैं उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। एक्स्ट्रा जो मैन पावर है वो रोडों पे दिखाई देगा आपको, क्योंकि स्थिति बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई थी। मगर आज अगर आप बात करें पिछले कुछ दिनों की तुलना में, तो आज नोएडा के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नोएडा की वो 250 के आसपास, मगर ये भी पुअर कैटेगरी में आता है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो ये देखिए उससे थोड़ा कम है, क्योंकि अगर हमने कल और परसों देखा तो नोएडा की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार पहुंच गया था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आता है। लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, जो लोग अपने सुबह दफ्तर जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। उनसे जब हमने बातचीत की, उनका तो साफ तौर पे कहना था कि देखिए अब तो हर साल का ये एक तरीके से हमें झेलना पड़ रहा है कि हर साल ये पॉल्यूशन आता है अक्टूबर माह में और हमें एक तरीके से रुला के जाता है। तमाम लोगों को समस्या आ रही है, आंखों में जलन की समस्या आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटल में जो दमा के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। खासकर जो बुजुर्ग लोग जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर ने हिदायत भी दी है कि अगर जो बुजुर्ग है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या तमाम एक्सरसाइज करने जाते हैं वो अभी थोड़ा उससे अवेयर रहें, उससे थोड़ी अभी दूरी बनाए रखें, क्योंकि पॉल्यूशन का जो लेवल है बहुत ज्यादा खराब है और वो आपको अंदरूनी बीमार कर सकती है। दूसरी तरफ अगर प्राधिकरण की बात करें या पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो वो तमाम जगह चालान काट रही है। यानी कि ऐसे इमारत, ऐसे बिल्डर जो खुले में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर वो चालान काट रहे हैं। मगर चालान से कुछ नहीं होगा, हमें भी थोड़ा अवेयर होना होगा। हमें जो प्राइवेट व्हीकल की जगह जो गवर्नमेंट व्हीकल है या जो पब्लिक व्हीकल है उसको हमें यूज करना होगा। क्योंकि देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाना होता है तो गाड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी से जो निकलने वाला धुआं होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है तमाम लोगों के लिए, तो उसका भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ अब देखिए अगर बात करें नोएडा में, तो नोएडा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि पूरी तरीके से वहां इंडस्ट्रियल एरिया है। चाहे वो सेक्टर 63 की बात करें, 58 की बात करें, 74 की बात करें, यहाँ जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा अधिक है। यहाँ जो पॉल्यूशन है यहाँ 300 के पार है। वहाँ जो
प्रशासन है उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं भारी संख्या में लोग सुबह शाम अप डाउन करते हैं, वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो ग्रैब 2 लागू हुआ है पूरे एनसीआर में उस पर सख्ताई से पालन कराने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ग्रैब 2 जब लागू होता है तो ऐसे जनरेटर वाहन, ऐसे डीजल वाहन जो पॉल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं उस पर रोक लगाई जाती है। ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट जो खुले में कंस्ट्रक्शन करते हैं उस पर रोक लगाई जाती है। मगर आज भी आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाएंगे, ग्रेटर नोएडा के तमाम ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां बड़े बड़े जो बिल्डर हो रहे हैं खुले में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसके कारण पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा अगर जो रीजन बताया जा रहा है, जो एक सैटेलाइट इमेज आई है कि किस तरीके से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जो किसान पराली जला रहे हैं उसके कारण भी जो नोएडा एनसीआर का जो क्षेत्र है वो भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि हम पराली नहीं जलाएंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं। सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते और हम पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमें दूसरी फसल लगानी होती है। तो सैटेलाइट से ये इमेज तो आ रही है कि जो किसान है वो पराली जला रहे, पराली जलाने की वजह से नोएडा एनसीआर का जो क्षेत्र है वो काफी पॉल्यूटेड हो जाता है और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं। खासकर अगर आप जहां इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं या जहां फैक्ट्री लगे होते हैं वहां अगर आप देखेंगे AQI चेक करेंगे तो वहाँ 350 के आसपास होता है और वहाँ बहुत ज्यादा लोगों की आंखों में जलन होता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। डॉक्टर की हिदायत है कि अगर आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट महिला है, उन पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो पॉल्यूटेड एयर है ये आपको कैसे अंदर से आपको बीमार कर सकती है, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो किसी काम से अपना मास्क जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फायदा जरूर देगा। मगर देखिए हर साल की तरह एक चुनौती आती है नोएडा एनसीआर के लोगों के लिए और हर बार ये सरकार जो गवर्नमेंट है अलग अलग वो ये वादे करती है कि इस बार पॉल्यूशन पे हम कंट्रोल करेंगे, मगर पॉल्यूशन पे कंट्रोल कहीं नहीं होता। अक्टूबर का महीना है और दिवाली के आने से पहले ही ये पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.